Okay, DBMS transaction. Okay, this is unit 4 topic है. If you want to revise again any topics from the previous units, you can tell me. We will revise, no problem, no issue. If you want to revise the commands again, then I will again explain the commands to you. Okay, but just tell me, inform me. Okay, if you cannot telling the lecture, then just WhatsApp me. Okay, आप अगर lecture में नहीं बता सकते तो you can WhatsApp me कि मैम ये repeat करवा दो, ये करवा दो, तो we will revise. Okay. Chalo. Now transaction, we have already learned the transaction in the previous lectures. Today we will revise. Okay, transaction. What is transaction? The transaction can be defined as a group of tasks. Okay, why group of tasks? Because when you are doing any transaction, so first of all, you have to open any transaction. For example, if you want to transfer money from your account to your friend's account, so yes, V Pratap, what is the issue? क्या हुआ? SQL इंस्टॉल हो गया था तो फिर से इंस्टॉल करने में इश्यू आ रहा है, तो आप उसको अनइंस्टॉल करो. फर्स्ट ऑफ ऑल अनइंस्टॉल करो. अनइंस्टॉल किया? ओके. तो ओके, यू विल शेयर योर स्क्रीन इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, देन वी विल सॉर्ट आउट दैट इशू. क्या है मुझे ऐसे नहीं समझ में आएगा. आई हैव टू सी ना, मुझे देखना पड़ेगा क्या इशू है. ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में आप रेडी रखना आपका मोबाइल लैपटॉप वगैरह जिसमें आप कर रहे हो, तो एंड रिमाइंड मी. ओके, मुझे याद करवाओ मैम, आपने बोला था. ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे जो भी हिस्ट्री आपके लैपटॉप का. ओके, तो हाँ, इट इज अ सेट. ट्रांजैक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ टास्क. Okay, means group of tasks means, for example, if you want to transfer money from your account to your friend's account. Okay, so what you will do first, आप पहले क्या करोगे? You will open any your banks का जो application है. ठीक है, you will open your bank app. Okay, बैंक का ऐप ओपन करोगे या तो फिर गूगल. इफ यू वांट टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम गूगल पे, तो यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ओपन द गूगल पे एप्लीकेशन. ओपन करोगे, देन यू विल सिलेक्ट द ऑप्शन कि आपको ट्रांसफर करना है. देन यू हैव टू सिलेक्ट कि किसको ट्रांसफर करना है. देन हाउ मच यू वांट टू ट्रांसफर, हाउ मच मनी यू वांट टू ट्रांसफर टू योर फ्रेंड, वो आप उसमें आपको पूछते हैं. तो यू हैव टू एंटर दैट अमाउंट. ओके, देन आफ्टर यू हैव टू एंटर योर पिन नंबर. ओके, पिन नंबर एंटर करोगे, आपका मोबाइल जो भी आपने सेट किया होगा फॉर द गूगल पे के लिए सिक्योरिटी पिन, तो दैट यू हैव टू एंटर. वो पिन एंटर करोगे, देन योर मनी विल बी ट्रांसफर्ड. Okay, so these are the steps. Group of tasks. The transaction can be defined as a group of tasks. Small number of tasks are there. Okay, तो यहाँ पे हमें we have example ही है. Okay, तो when any transaction is performed, okay, कोई transaction perform होता है, so in the database there are two types of operation will be done on the database. The first is read operation, then second is write operation. Okay, when any transaction perform, so there are two operation will be performed on the database. Database में से क्या होता है, two on database पे two operation perform होता है, to read and write. Okay, if we want to transfer money या तो बैंक एम्प्लॉय ट्रांसफर करा है एक अकाउंट, वन अकाउंट में से सेकंड अकाउंट में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, अकाउंट ओपन करेगा, देन रीड करेगा बैलेंस. ओके, बैलेंस रीड करेगा, देन ट्रांसफर करेगा. ट्रांसफर करने के बाद अगेन उसको क्या करना पड़ेगा, राइट मतलब चेंज, अपडेट करना पड़ेगा कि पहले जितना था ट्रांसफर कर दिया तो रिमेनिंग अमाउंट वो राइट. तो दैट इज अ राइट ऑपरेशन. सेम बी के अकाउंट में मनी क्रेडिट होगा, तो पहले रीड होगा कितना मनी है, देन क्रेडिट होगा, क्रेडिट होने के बाद देन अपडेट होगा कि फाइनल नाउ दिस इज अ न्यू बैलेंस. दैट इज अ रीड ऑपरेशन. So two types of operations are performed, read and write operation. These are the properties of the transaction. Okay, SCID properties. The transaction, how the transaction should be. Okay, कैसा होना चाहिए, तो these are the properties के transaction जो है that must be atomic. Either full transaction should be done, otherwise transaction should be failed. Okay, ऐसे partially transaction नहीं होना चाहिए, बीच में नहीं, A में से ट्रांसफर किया तो B में नहीं क्रेडिट हुआ, ऐसे नहीं. Okay, if account if money is debited from the account A, okay, तो account B में भी वो क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए. तो ट्रांजेक्शन फुल्ली होना चाहिए. ओके, फुल्ली कंप्लीट होना चाहिए या तो फिर फुल्ली कैंसिल होना चाहिए. ओके, ऐसे पार्शियल ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए. दैट इज एटोमिसिटी. ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंस होना चाहिए. ओके, कंसिस्टेंट स्टेट में वो जाना चाहिए आफ्टर द ट्रांजैक्शन. आफ्टर द ट्रांजैक्शन होने के बाद डेटाबेस मस्ट बी इन कंसिस्टेंट स्टेट. डेटाबेस कौन से स्टेट में होना चाहिए, कंसिस्टेंट स्टेट में होना चाहिए. ओके, एक्यूरेट जो बैलेंस है दैट शुड बी मेंटेन इन द डेटाबेस, कंसिस्टेंट होना चाहिए. ओके, 500 कट हुआ तो 500 ही अपडेट होना चाहिए. ओके, फिर ऐसे नहीं कि 500 ट्रांसफर किया तो 1000 कट हुआ या तो 1000 क्रेडिट हुआ, वैसे नहीं. कंसिस्टेंट जो करेक्ट उसका जो है डेटा जो है दैट कंसिस्टेंट मेंटेन होना चाहिए इन डेटाबेस आफ्टर द ट्रांजैक्शन. ओके, इसलिए बोला है
once the transaction is executed. Okay, after the transaction के बाद, okay, after the transaction जो डेटाबेस जो है वो कंसिस्टेंट स्टेट में होना चाहिए, मतलब करेक्ट डेटा उसमें स्टोर होना चाहिए. देन आइसोलेशन. ओके, आइसोलेशन मतलब क्या? द ट्रांजैक्शन, ओके, व्हेन द मल्टीपल ट्रांजैक्शन अकर, तो एवरी ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. ओके, मल्टीपल ट्रांजैक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है. ओके, तो जो ट्रांजैक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है तो डेटाबेस तो एक ही है. ओके, डेटाबेस तो एक ही है, बट पॉसिबल है कि एक ही डेटाबेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, बहुत सारे मल्टीपल यूजर्स उसको यूज करें. तो वो जो ट्रांजैक्शन, मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो रहा है वो कैसे होना चाहिए? इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. कैसे होना चाहिए? इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, दैट इज आइसोलेशन. ओके, आइसोलेशन. तो उसके लिए भी प्रोटोकॉल्स है कि एक दूसरे को इफेक्ट, कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, अफेक्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है, वो हम लोग देखेंगे इन द नेक्स्ट टॉपिक में. ड्यूरेबिलिटी. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूरेबिलिटी? कि आफ्टर द ट्रांजैक्शन डेटाबेस में जो चेंजेस हुआ है वो चेंजेस परमानेंट होना चाहिए. ओके, ऐसे नहीं है कि 1 आवर के लिए, 2 आवर के लिए, नहीं. जब तक नेक्स्ट आप ट्रांजैक्शन नहीं करो, कुछ न्यू ट्रांजैक्शन नहीं करो, तब तक आपका जो चेंजेस डेटाबेस में हुआ है इट शुड बी परसिस्ट होना चाहिए. इफ द इन केस ऑफ द सिस्टम फेलियर. ओके, अगर आपके मोबाइल में ऐप है, अब ऐप थ्रू मनी ट्रांसफर करो, मनी ट्रांसफर कर दिया, बैंक में आपका जो अमाउंट है वो अपडेट हो गया, तो जो बैंक में अपडेट हुआ है ना वो ऐसे ही होना चाहिए जब तक आप सेकंड ट्रांजैक्शन नहीं करो तब तक. ओके, फिर अगर वो ऐप मोबाइल में से डिलीट हो जाए तो कुछ भी इश्यू है, बट वो आपका डेटाबेस जो है वो डेटाबेस में चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है, डेटाबेस में जो चेंजेस है वो एज जैसा था वैसे ही रहना चाहिए. कैसे नहीं कि हम, फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग द बैकअप इन अवर पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव में डेटा एज इट इज ही रहता है जब तक आप उसको चेंज नहीं करते तब तक. तो सेम केस इन डेटाबेस, ट्रांजैक्शन जो डेटाबेस में अपडेट हुआ है ड्यू टू ट्रांजैक्शन की वजह से, तो वो अपडेट बस ऑलवेज उसमें ही रहना चाहिए जब तक आप उसमें कोई चेंजेस नहीं करो. ओके, तो दैट इज द ड्यूरेबिलिटी. ओके, the next is why do you need concurrency in the transaction? What is the meaning of concurrency? चलो कौन बताएगा मुझे? What's the meaning of concurrency? What is the meaning of concurrency? Yes, simultaneously, Rinki, Arun, multiple transaction at a time. Yes, very good. Okay, so multiple transaction. Okay, simultaneously transaction हो रहा है with the database के साथ. Okay, मैंने आपको बताया था, I told in the previous lecture, okay, there is only one database. ओके, एक ही डेटाबेस हम लोग बनाते हैं. फॉर हमारे कॉलेज के लिए देयर इज ओनली वन डेटाबेस, बैंक के लिए एक ही डेटाबेस होगा, होल बैंक के लिए एक ही डेटाबेस होगा. ओके, बट टेबल्स में भी पॉसिबल है कि अलग अलग टेबल्स होगा, बट डेटाबेस तो एक ही होगा. तो जब मल्टीपल ट्रांजैक्शन आप परफॉर्म ऑन द सेम डेटाबेस, तो ट्रांजैक्शन जो है वो सक्सेसफुल, वो ट्रांजैक्शन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए. कॉन्करेंसी, कॉन्करेंसी ट्रांजैक्शन जरूरी है. व्हाई? बिकॉज डेटाबेस इज शेयर्ड. ओके, डेटाबेस कैसे होगा? शेयर्ड डेटाबेस. ओके, डेटाबेस इज अ शेयर्ड रिसोर्स एक्सेस. इट इज यूज्ड बाय मेनी यूजर्स and process concurrently. Okay, concurrently मतलब simultaneously. You can use the word simultaneously or parallelly or concurrently. You can use the words. For example, the banking system, रेलवे, हर एक के लिए एक ही डेटाबेस होता है. ऐसे नहीं है कि रेलवे जो है ऑनलाइन आप टिकट बुकिंग करते हो तो हर एक के लिए अलग अलग डेटाबेस होगा. नो. ओके, देयर इज ओनली वन वेबसाइट फॉर बुकिंग द रेलवे रिजर्वेशन. ठीक है, वो आईआरसीटीसी का एक ही वेबसाइट है, तो वो आईआरसीटीसी की वेबसाइट के लिए एक ही डेटाबेस होगा. वो डेटाबेस, वो साइट पे से एनी यूजर कैन बुक दी ट्रेन टिकट्स. ओके, साइमल्टेनियसली भी हो सकता है और कभी भी कोई भी टिकट उस पर बुक कर सकता है. पॉसिबल है कि आप बुक करो एट द सेम टाइम बहुत सारे यूजर्स भी सेम टिकट बुक कर रहे होंगे, सॉरी मतलब सेम ट्रेन में टिकट बुक करे होंगे. ठीक है, तो वो जो ट्रांजैक्शन उनका हो रहा है वो ट्रांजैक्शन क्या होना चाहिए? कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए. ओके, इंडिपेंडेंट एक दूसरे को होना चाहिए. तो डेटाबेस शेयर्ड है, एक ही डेटाबेस होता है. ठीक है, तो इसीलिए हमको क्या जरूरत पड़ती है? कंकरेंसी. कंकरेंसी मतलब क्या? साइमल्टेनियसली एक्सेस, मल्टीपल एक्सेस टू द डेटाबेस. तो फॉर दैट रीजन डेटाबेस शेयर्ड रिसोर्सेज है, एक ही डेटाबेस हम लोग बनाते हैं, इसीलिए कॉन्करेंसी इंपॉर्टेंट है. ओके, कॉन्करेंसी इन ट्रांजैक्शन पे मल्टीपल ट्रांजैक्शन साइमल्टेनियसली पॉसिबल होना चाहिए. ओके, नॉट मैनेजिंग कॉन्करेंट एक्सेस. अगर हम लोग कॉन्करेंट साइमल्टेनियसली एक्सेस हो रहा है, एक मल्टीपल यूजर्स डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है. ओके, अगर नहीं ऐसा अलाउ किया, अगर हमने ऐसे अलाउ नहीं किया, ठीक है, अगर हमने ऐसा कंडीशन रखा
कि एट ए टाइम एक ही यूजर जो है वो यूजर सिस्टम को यूज कर सके, तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, तो पॉसिबल है वैसे, नो। कितना टाइम वेट करोगे, इंडिया में कितने पीपल्स हैं, या वेबसाइट तो इंडिया तो पता नहीं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड हम लोग वेब वेब वेबसाइट्स है, तो कोई भी वर्ल्ड का कोई भी पर्सन कैन यूज दैट वेबसाइट्स, कैन यू, अगर उसको जो भी परचेस वगैरह करना कोई भी उसको कर सकता है, ठीक है, अगर उसको एक्सेस अवेलेबल है तो अगर एक एट अ टाइम एक ही यूजर उसको एक्सेस करे तो क्या होगा, क्या होगा, डेडलॉक कंडीशन होगा, परफॉर्मेंस स्लो होगा, ठीक है, हार्डवेयर फेलियर एंड सिस्टम क्रैशेस। इश्यू है कि वन बाय वन करेंगे तो जो वेबसाइट्स को जो हैंडल करने वाला बंदा है वो नहीं हैंडल कर पाएगा, ओके, तो ऑल आर दी इश्यूज। सो वो शॉर्ट आउट करने के लिए कॉन्करेंसी इन ट्रांजैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मल्टीपल ट्रांजैक्शन शुड बी पॉसिबल, multiple users can do the transaction at the same time, okay, so it is important in transaction. Then second we have learned the state of transactions, okay, there are different state of transaction. Active state, what is the meaning of active state, कि ट्रांजैक्शन जब ऑन प्रोसेस है, ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगा तो दैट इज इन द एक्टिव स्टेट, ओके, इजी है, कुछ नहीं है उसमें, कुछ नहीं है। व्हेन दैट ट्रांजैक्शन इज अ वन टाइप ऑफ प्रोसेस, वन टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज अ प्रोसेस इटसेल्फ, ट्रांजैक्शन क्या है, प्रोसेस है, तो every process has some life cycle, okay, in the operating system we have already learned the process has a life cycle, so this is a transaction process life cycle। जब transaction start होगा तो it is in active state, and in the active state there are two operation performed, the read operation and a write operation on the database, किस पे perform होगा, database पे perform होगा। The second is partially committed, the second is partially committed, okay, a transaction goes into the partial committed state after the end of the transaction, okay, your money will be transferred, मतलब आपका transaction जो है वो partially committed हो गया, okay। Then committed state, what is the committed state, after changes in the database, data आपका transaction complete हो गया but अभी database में change नहीं हुआ तो that is in partial committed state, your money is transferred, your database is also updated, then you can say the transaction is in committed state। Clear, what is the difference between partial committed and committed state, डिफरेंस समझ में आया, दोनों स्टेट में क्या डिफरेंस है, दोनों में ट्रांजैक्शन तो कंप्लीट हो रहा है, ओके, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल कंप्लीट हो रहा है, बट व्हाट इज द डिफरेंस, इन द पार्शियल कमिटेड स्टेट में अभी डेटाबेस में चेंज नहीं हुआ है, ओके, डेटाबेस अपडेट नहीं हुआ है, आफ्टर अपडेटिंग द डेटाबेस, डेटाबेस में अपडेट होने के बाद देन वी कैन से द ट्रांजैक्शन इज इन द कमिटेड स्टेट। क्लियर, क्लियर स्टूडेंट्स, yes or no, yes, yes, very good, ओके, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है कि पार्शियली कमिटेड एंड कमिटेड मतलब क्या, पार्शियली मतलब क्या, हाफ, हाफ काम हुआ है हाफ नहीं हुआ है, दैट यू कैन से, ओके, पार्शियल मतलब क्या, हाफ हुआ है हाफ नहीं हुआ है। तो अब हम किसके उसमें बात करें, इन विच केस वी आर कंसीडरिंग कि डेटाबेस में चेंज हो रहा है कि उसके उसमें, अगर डेटाबेस में चेंज हो गया फाइनली देन इट इज अ कमिटेड स्टेट। फेल स्टेट, ओके, कोई ट्रांजैक्शन अगर फेल हो गया, ओके, ट्रांजैक्शन अबॉर्ट हो गया, ओके, वो एक्टिव स्टेट में है बट कुछ इश्यू की वजह से वो फेल हो गया, ओके, फॉर एग्जांपल आप मनी ट्रांसफर करो, बैंक का सर्वर डाउन है या तो फिर आपका नेट स्लो है, ओके, टाइम ज्यादा ले रहा है, आपका डिवाइस स्लो है, तो ड्यू टू दैट ट्रांजैक्शन मे बी फेल, तो वी कैन से दैट कि ट्रांजैक्शन फेल स्टेट में है, ओके, आप ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया, ठीक है, बट ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया इन बिटवीन, ओके, इन बिटवीन द ट्रांजैक्शन ड्यू टू एनी इश्यू, बैंक का सर्वर या तो फिर आपका नेट इश्यू, कोई भी इश्यू की वजह से ट्रांजैक्शन फेल हो गया तो वी कैन से दैट द ट्रांजैक्शन इज अ फेल स्टेट। एंड टर्मिनेटेड मतलब क्या, कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, ओके, फेल होने के बाद भी आप टर्मिनेट कर सकते हो, कमिट होने के बाद ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा, ओके। फेल होने के बाद देयर आर टू ऑप्शन कि आपको क्लोज करना है कि रिट्राई करना है, ओके, देयर आर ऑप्शन है कि अगेन रिट्राई करो या तो फिर क्लोज करो, तो अगर हमने क्लोज कर दिया तो वी कैन से कि ट्रांजैक्शन इज इन टर्मिनेटेड स्टेट, ओके। सेम कमिट हो गया, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया, डेटाबेस में चेंज हो गया, हम लोग एप्लीकेशन क्लोज करें तो ट्रांजैक्शन इज इन टर्मिनेटेड स्टेट, ओके। So these are the states of the transaction, these are the figure, you can remember this text from this figure, okay, it is easy to remember। yes, बैंक का सर्वर डाउन क्यों रहता है, there are many issues, okay, there are many issues regarding to server, हो सकता है कि
सी स्टूडेंट व्हाट हैपन, जब भी हम लोग कोई वेबसाइट्स बनाते हैं तो एप्लीकेशंस बनाते हैं, ओके, तो पहले उसको हमको क्या करना पड़ता है, वी हैव टू होस्ट, ओके, कोई सर्वर पे हमको उसको होस्ट करना पड़ता है, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स, हमको डोमेन परचेज करना पड़ता है, वी हैव टू अपलोड अवर वेबसाइट्स, जो है वो सर्वर पे डालना पड़ता है, जब हम लोग सर्वर पे डालते हैं ना, देन हमको एक एड्रेस मिलता है कि आपका वेबसाइट का ये एड्रेस है, ठीक है, देन वो यूजर को शो होता है, देन यूजर कैन यूज दैट वेबसाइट फ्रॉम द सर्वर, कहाँ से यूज करते हैं, सर्वर से यूज कर सकता है, तो सपोज देयर इज ए वन एक साइट, एक सर्वर है, GoDaddy करके सर्वर है, इन दैट सर्वर अवर कॉलेज का वेबसाइट पब्लिश किया है, तो GoDaddy सर्वर में बहुत सारे वेबसाइट्स पब्लिश होता है, ऐसा नहीं कि ओनली हमारे कॉलेज का वेबसाइट है, एनीवन कैन, अगर आप लोग आपका स्मॉल वेबसाइट है तो एप्लीकेशन बना रहे हो, इफ यू वांट टू पब्लिश वेबसाइट या तो एप्लीकेशन ऑन द नेट, अब थ्रू GoDaddy डोमेन थ्रू आप उसको पब्लिश करो, तो पॉसिबल है कि वो सर्वर जो है उसमें कुछ इश्यू है, या तो मल्टी साइमल्टेनियसली बहुत सारे एक्सेस उस पे आ रहा है, तो उसका स्पीड स्लो हो गया, इट इज अ सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ इश्यू आता ही है, कभी कभी आप अपना लैपटॉप स्टार्ट करो, ओके, थोड़ा टाइम अच्छा चलता है तो वो हैंग भी हो जाता है, वाई, क्यों, क्योंकि वो उस पर एकदम से लोड आ गया, आपने बहुत सारा मल्टीपल एप्लीकेशन एक साथ ओपन कर दिया आपके सिस्टम में, ओके, डिपेंड ऑन योर प्रोसेसर, आप कौन सा प्रोसेसर यूज करते हो, तो बहुत सारे फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग टू द स्पीड ऑफ अवर सिस्टम, तो सेम थिंग इज एप्लीकेबल इन टू दी सर्वर, सर्वर को भी सेम थिंग एप्लीकेशन, सर्वर में भी अगर उनका कुछ बहुत सारा ट्रैफिक आ गया सर्वर पे, बहुत सारे यूजर्स उसको ज्यादा यूज करे, ज्यादा लोड हो गया, ठीक है, अब देखना आपको कभी कभी ये जो 10th 12th का रिजल्ट होता है ना, अभी जस्ट हुआ था आई थिंक 10th का रिजल्ट की, बहुत सारे यूजर साथ में यूज करने लगे वो रिजल्ट देखने के लिए, तो क्या हो गया, साइट क्रैश हो गया, तो लोड बैलेंस नहीं कर पाया, ठीक है, तो ऑल दिस थिंग्स यू विल लर्न ना इन द एसक्यू करके एक सब्जेक्ट है लास्ट ईयर जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, इन दैट सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग होता है, लोड टेस्टिंग वगैरह, ठीक है, तो वो बहुत सारा जो पैरामीटर्स है जो वो उसको इफेक्ट करता है, अभी आप उतना हाई लेवल में आपको नहीं समझ में आएगा, वी हैव दी वन सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस करके, जब हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं आफ्टर दैट सॉफ्टवेयर के क्या क्या टेस्टिंग हम लोग करते हैं, क्या क्या इश्यू जो अराइज होता है, ओके, तो नितिन वी विल लर्न स्टेप बाय स्टेप, ओके, डोंट वरी, हम लोग पढ़ेंगे सब, ओके, चलो, तो दिस आर द ट्रांजैक्शन स्टेप्स, ओके, बी एक्टिव, partially committed, committed, terminated and fail, okay, active termination have two possibility कि transaction अगर active है तो वो in between any reason की वजह से fail हो रहा है, या तो फिर end transaction, okay, partially committed है तो अगेन देयर आर टू पॉसिबिलिटी है कि अबॉर्ट हो रहा है या तो कमिट हो रहा है, कमिट मतलब फुल्ली कंप्लीट हो रहा है, एंड कमिटेड के बाद क्या है, टर्मिनेटेड, अगर फेल हो रहा है तो इट हैज अ टू ऑप्शंस, अगर क्या टर्मिनेट हो गया तो हम उसको रिस्टार्ट कर दो, दिस आर दी ट्रांजिशन डायग्राम फॉर दी डेटाबेस ट्रांजैक्शन, क्लियर, तो नाउ आज हम लोग इतना रखते हैं, इट्स 10:55 54, okay, we have the meeting on Monday, we will start the new topic, okay, if you have any doubt in any topic so you can tell, okay, and we will revise that, if you want to revise all the topics again then we will start the revision from the unit 1 again, ठीक है, तो प्लीज आपका जो डाउट्स है डाउट्स निकाल के रखो, अगर नहीं है डाउट्स तो हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्लियर, चलो मैं एंड दिस लेक्चर, यस मैम, ओके ओके, चलो आज कुछ न्यू नहीं किया हमने, जस्ट कल किया था वही किया, ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे, चलो बाय बाय, बाय मैम। बाय बाय।